Hello Bachcha Party. Chapter number 16 and topic number 3 of Sustainable Management of Resources of Subject Science Standard 10. Now what are the forests? Forests are the very precious natural resource that has been ever gifted by Mother Earth to we people. Right? So now let us discuss in detail what are the biodiversity hotspots. Actually, in forest we find varieties of different biological elements. What are the forest? Actually, forest consists of living plants, trees, animals, herbs, shrubs, and there will be wildlife too, of insects, animals, and whatnot. And one more thing, there will be few humans too who will be dwelling inside those forests. So all these people, all these different members forms a biodiversity hotspot. What is hotspot? Means at a point there will be gathering of different many items. That is a hotspot. So different type of biological activities will be going on in this hotspot. So it is known as biodiverse hotspot, right? Now what are the stakeholders of a forest? The very first stakeholder is local people in and around the forest. They play very important role in the management and ecological sustainability of the forest. How? That we will see later on. Next is the industrialist who always tries to exploit this forest for their own profit. How? We'll see it later. Next is the forest department of various government which handle these activities, which control this forest. How? That we'll see later. And last is environment activists who are actually amateurs, who are actually hobbyists, who are having hobby and love towards the nature, right? Let us discuss one by one, everyone. Local people around forest, actually they are having dependency for the employment, food, water, shelter, fodder, fruits, medicinal plant, leaves, firewood, bamboo for making homes and whatnot. They also used to fish there in the ponds of the forest. They used to also hunt in the forest for their food. Their sheep used to graze in and around the forest. So they are heavily dependent upon the forest. But can you guess, is these villages give anything in return to the forest? Just pause the video for a while, stop a video for a while and apply your own mind, think in your mind. What in return these local people or villages they are giving in return to the forest? They are playing a very vital role in the life of forest. And what role? Ecologically, they actually help to grow the forest. They are actually part of a forest, right? So they should not be underestimated. They should be considered as a part of forest because they have been living in the forest since centuries. They should not be forced to vacate the forest because it's their life. And they have now habituated and they have developed a way to live, mingle with the forest, a way to just be a friend with the forest. They are actually friend and not foe of the forest, right? So we should believe in them. So local people, they are very important part of forest. Now next comes the industrialist. Actually they are overexploiting generally. They are overexploiting the natural resources like forest. For what? Just for their profit because सबसे बड़ा रुपया. And industrialist, अब तो कुछ भी मानो कि पहले तो क्या होता, पूरे के पूरे जंगलों, ब्राजील में खास होता था, पूरे के पूरे जंगलों की सफाई कर दी जाती थी. They were using shifting cultivation. तो आप लोगों को पता होगा ब्राजील, अमेज़न, it's known as the lung of earth. पूरी दुनिया का very important proportion of the oxygen being produced in the Brazil forest, Amazon forest. ठीक है, अब वहां पर ही कटाई चालू हो जाए तो क्या होगा? कहीं कहीं तो ऐसे मतलब कि गीच जंगल है, गाढ़ जंगल है कि ऊपर से सन की रोशनी, सूर्य रोशनी नीचे नहीं पहुंचेगी, प्रकाश की किरणें ऊपर से नीचे नहीं पहुंच सकती है, उतने गाढ़ जंगल है, घने जंगल है. अगर उसकी कटाई शुरू हो जाए तो क्या होगा? लेकिन इससे इंडस्ट्रियलिस्ट को मतलब नहीं होता. उनको ये मतलब होता है कि हमें इन बम्बुओं से, हम इस साल टिकवुड से, साल से, साग से घर बनाना है, इससे पेपर बनाना है, इससे वो बनाना है, इससे मुझे इतना मुनाफा होगा, इतना मुनाफा होगा. जंगल गया भाई अपनी जगह, मुझे अपना प्रॉफिट, मुझे अपना रुपया कमाना है.
तब कभी कभी वो चित्र याद आता है, वो किसी कार्टूनिस्ट का चित्र याद आता है जिसमें एक कुल्हाड़ी लेके आदमी खड़ा होता है, बोलता है इस पेड़ को काटना है लेकिन थोड़ी देर धूप बहुत ज्यादा है, थोड़ी देर इसकी छांव में बैठ लेता हूं। वो बहुत कुछ कह जाता है उस पिक्चर, वो कार्टून। जिस पेड़ की छांव में वो बैठना चाहता है उसी पेड़ को वो काटना चाहता है। हम लोग गाड़ियां तो बहुत ले लेते हैं, लेकिन गाड़ियों को मतलब कि रखने के लिए कहीं न कहीं छांव के लिए हम लोग एक ट्री को ढूंढते हैं, लेकिन ट्री कभी हम लोग प्लांट करने का सोचते नहीं। Actually, we should understand, we should try to water the plants, we should try to हर साल हमें कम से कम एक अपने जन्मदिवस पर एक तो पौधा लगाना ही चाहिए। तभी हम मानेंगे कि हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड खुद निकालते हैं कम से कम उतनी कार्बन फुटप्रिंट तो कम करें। Anyway, now what these industrialists do? They plant for the selective trees. For example, उनको लगता है कि बम्बू ही मुझे चाहिए क्योंकि मैं तो पेपर के बिजनेस में हूं, पेपर बम्बू से बनता है, सो आई विल प्लांट हेक्टेयर्स ऑफ लैंड ओनली विद बम्बूज। वो सोचता है कि मैं कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ा हूं, मुझे तो टीक वुड की रिक्वायरमेंट है, वो पूरा का पूरा टीक वुड ही बोएगा। लेकिन उसके लिए क्या करेगा? उसके लिए जो पहले का वेजिटेशन है दैट विल बी वाइप्ड आउट कंप्लीटली। तो वहां के जो बायोडाइवर्सिटी है, पेड़ पौधे, पंछी, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, सेप्रोफाइट्स, एवरीथिंग विल बी बर्न्ड आउट, वाइप्ड आउट। पूरी की पूरी साइकिल वो उजाड़ दी जाती है और उसके बाद में साइंटिफिक मेथड से वहां पर टिक या बम्बू, जो भी मानो कि इंडस्ट्रियलिस्ट की अपनी पसंद हो, अपना बिजनेस हो, उसको लगाता है। तो इससे अर्थ को फायदा नहीं नुकसान होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स विद द लोकल पीपल होता है, वो क्या करेगा? आसपास के लोकल पीपल को दूर करना चाहेगा क्योंकि वो उसके रिसोर्सेस में डिस्टर्ब करता है। बायोडाइवर्सिटी पूरी की पूरी मानो कि इकोलॉजिकली चेंज हो जाती है, वो किल कर देता है एंड इट्स डेफिनेटली अफेक्ट्स इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। सो इंडस्ट्रियलिस्ट अगर मानो कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट के रूप से इंडस्ट्रियलिस्ट अगर मानो कि नेचुरल रिसोर्सेस को सस्टेनेबल वे में नहीं हार्नेस करेंगे, एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, तो यही होगा। इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए कि वो अपने प्रॉफिट के साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेस का प्रॉपर्ली सस्टेनेबल वे में मैनेजमेंट के रूप में करें। अगर मानो कि 5 पेड़ काटता है तो वो उसको 5 पेड़ पहले बोने चाहिए, उसके बाद ही उसको 5 पेड़ काटने की छूट होनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड what are these environment activities? They actually love forest, animal, birds. They may be single person or maybe a group of people. They may be NGOs. Now what is the full form of NGO? That is non-government organization. अगर उसको लगता है कि भाई गवर्नमेंट अपनी ओर से काम कर रही है, वो हो सकता है कम हो, तो चलो हम अपनी ओर से अपनी कुछ सेवा प्रदान करें। तो there are certain NGOs which are working for the nature, which are working for the forest, which are working for the animals and whatnot. There are hundreds of NGOs working in and around India. भारत में भी काफी है, throughout the world। आपने पेटा का नाम सुना होगा। It works for the rights of the animals, right? उससे काफी बड़े, उसके साथ काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी connected। So these are the NGOs. Can you name few? If you not, just Google it out, find out the work about these NGOs and write it in the comment. Now this Bishnoi community, NGO में ये कहाँ आ गया? मैंने बताया था NGO हो सकता है वो कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है वो एक सोसाइटी हो सकता है वो सिंगल पर्सन हो। तो बिश्नोई कम्युनिटी एक्चुअली थार डेजर्ट वेस्टर्न राजस्थान, वहां पर एक कम्युनिटी है, उसका नाम बिश्नोई है। वो कम्युनिटी दे आर हैविंग अ लॉट लव टुवर्ड्स द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। आप देख सकते हैं हिरन, वो एक महिला कितने प्यार से, एक भाई साहब कितने प्यार से हिरन को अपने मतलब की बाहों में लेके खड़े हैं, ठीक है। उनके चेहरे से पता चलता है कि हाउ मच दे डू लव विद द एनिमल्स, राइट। और उनको मतलब ये जिन्स में है, उनको मतलब कि उसके पीढ़ी दर पीढ़ी एक संस्कृति है कि भाई हमें एनिमल्स को मारना नहीं है, उसके साथ प्यार से रखना है। तो उसकी ही याद में अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 1731 में खेजराली नाम का एक गांव था। 1731 में खेजराली नाम का जो गांव था, वहां पर मोर देन 350 पीपल वेर किल्ड इन द लीडरशिप ऑफ अमृता देवी बिश्नोई। वो बोली हम अपने खेजरी जो ट्री है वो कटने नहीं देंगे। राइट साइड में जो आपको खेजरी ट्री दिख रहा है, जो कि खेजराली गांव के थे,
तो खेजड़ी ट्री को नहीं कटने के लिए वो खुद मोर देन 350% were killed, अपनी जान दी लेकिन पेड़ों को नहीं कटने दिया। और इस खेजड़ी ट्री का साइंटिफिक और बॉटनिकल नाम है प्रोसोपिस सिनेरेटिया। ये याद रखना चाहिए हम लोगों को। और आप देख सकते हैं भारत सरकार के द्वारा इस प्रकार से जो महिलाएं इस विषय में अच्छा काम करती है उसको अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड पहले राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता था, अब हमारी केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, राइट। दूसरा इसी प्रकार का एक नोटवर्दी एग्जांपल है चिपको आंदोलन, दैट इज हग द ट्री मूवमेंट। एक्चुअली इट वाज स्टार्टेड इन उत्तराखंड इन 1973 in which forest conservation movement was started by the people when certain people came to Uttarakhand and they started to cut the trees. The women gathered and they just hugged the tree. No, we will not allow you to cut the trees. These are our friends, these are our life givers. हम लोग बोलते ये लोग अनपढ़ है, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ वो अनपढ़ नहीं, पक्के अनपढ़ तो हम लोग हैं जो पढ़े हैं फिर भी अनपढ़ हैं। वो तो अनपढ़ है फिर भी जानते हैं कि पेड़ उनकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखता है। हम तो लिखते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ हमारी जान है, लेकिन वहां पर उसी जान को काटने बैठ जाते हैं। तो ये लोगों ने अपनी जान दे दी लेकिन पेड़ों को कटने नहीं दिया। ये आंदोलन भी काफी फेमस हुआ था। Now what is the people's participation in the management of forest? Actually locals they are dependent upon the forest for their livelihood. They more inclined towards the forest not due to the profit but with the feelings of the services. Solves unemployability and नक्सलिज्म प्रॉब्लम्स। जितना आप लोकल लोगों को फॉरेस्ट के आसपास के काम में लगाएंगे वो अपने काम में बिजी रहेंगे तो दूसरे जो प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, क्योंकि अगर किसी के पास काम होगा तो वो कोई ना कोई काम में अपना दिमाग बिजी रखेगा। लेकिन if any person is not having the work then he will try to utilize his mind at everywhere, right? So it's better that these local people they are better suited for this environment. Let their potential be exploited, let their potential be used in this type of activities so that they too can remain happy. अरावती फॉरेस्ट रेंज की एक कहानी है। 1272 hectares of land was reforested with the sal wood, and how through the villagers employment through the silviculture harvesting and क्या किया गया। Actually it is situated in the West Bengal और पूरी this more than 1200 acre की जो land है it was through the cooperation of the local villagers and farmers it was reforested with the teak wood and sal wood, and पूरी की पूरी जो बंजर जमीन थी which was very arid region of land which was useless piece of land was converted worth more than 12 crore rupees. How? With the help of these local people. अगर चाहे तो आप लोकल लोगों का इस प्रकार से भी यूज करके आप नर्क को स्वर्ग भी बना सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए इन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे जितने लोग थे लोकल उनका एक प्रकार से कोऑपरेशन लिया। सो दिस आर द स्टोरीज व्हिच कैन चेंज द सिनेरियो ऑफ एनवायरनमेंट। ये आप देख सकते हैं अरावती विलेज, अरावती फॉरेस्ट रेंज की फोटोग्राफ्स है। Now what is the silviculture? Actually we have used the word silviculture. Actually it is the manipulating forest vegetation to enhance forest growth and establish forest trends and wildlife habitat. ये टेक्निकल लैंग्वेज में है, सीधी सादी भाषा में ऐसा बोल सकते हैं कि सिल्वीकल्चर का मतलब कि आसपास के लोगों के द्वारा अपना फॉरेस्ट जो है उस फॉरेस्ट में उसको कोऑपरेशन के रूप में लगाना और उसी फॉरेस्ट में सबकी विन विन सिचुएशन हो, सबका भला हो, सबका साथ, सबका विकास हो, उसको हम सिल्वीकल्चर बोलते हैं। लेकिन कहाँ पर? फॉरेस्ट और आसपास के जो लोकल लोग हैं उसके परव्यू में। In the next video we'll be talking about the next precious resource that is water. Thank you for watching.